کہ اس سے کہو کہ بھائی میرے یہ جو محبت ہے نا یہ فطری اور طبعی محبت ہے جو سب کے اندر موجود ہے، جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، کتے بلیوں کے اندر بھی وہ محبتیں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے اندر بھی وہ محبت موجود ہے۔ اپنے ماں اور اپنے باپ کو وہ بھی پرندے پہچانتے ہیں کہ ماں اگر ان کے گھونسلے کے پاس آئے تو وہ منڈیاں اٹھا اٹھا کے جو ہے اظہار کرتے ہیں محبت کا، تو اور اگر کوئی غیر پرندہ آئے تو وہ چپکے دبکے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے خوف اور دہشت کے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ محبت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ محبت تو طبعی اور فطری محبت ہے۔ اور جو شرعی محبت ہے، جو شرعی محبت ہے وہ ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ شرعی محبت ان تمام محبتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے، ان تمام محبتوں سے بلند ہوتی ہے۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بیوی بچے، یہ جتنے بھی مال و دولت، کیا اگر اللہ کی محبت میں یہ آڑے آئے تو وہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے؟ نہیں۔ اگر دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اوپر غالب ہو اور اللہ کی محبت مغلوب ہو، کم ہو، تو ظاہر ہے بندہ ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، یوں سمجھ لیں، ہے کہ نہیں؟ بلکہ ان محبتوں کے اوپر، اللہ کی محبت پر ان تمام محبتوں کو قربان کر دینا، یہ انسان کے ایمان کی معراج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ شرعی محبت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ، ہر بندہ اللہ وحدہ لا شریک، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب اللہ وحدہ لا شریک بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، جس طرح اپنے بندے، جس سے اس کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو لوگ ایسے قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان کا جنگ کرتا ہوں۔ اور بندہ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور بندہ بہت ساری چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن سب سے پسندیدہ میرے نزدیک جو چیز ہے وہ جس کے ذریعے سے کہ وہ میرا قرب حاصل اور نزدیکی حاصل کرتا ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بندے کے اوپر فرض کری ہیں، واجب قرار دی ہیں۔ جب بندہ اس سے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ کوئی پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ غرض کی جب وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ غرض کی یہ لمبی حدیث جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی آیت پڑھی میں نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ بعض فرقے اور بعض جماعتیں مسلمانوں کے اندر، بعض باطل عقیدے کے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے غیر ممکن ہے، محال ہے، اللہ کو محبت نہیں، اللہ کو غضب نہیں، اللہ کو کچھ، انکار کرتے ہیں اس صفت کا، کہتے ہیں یہ بندوں کی صفتیں ہیں۔ لیکن اس ان آیات سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ
जैसी अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है वो बिला किसी तमसील के, बिला किसी तशबीह के, बिला किसी तकीफ के कि अल्लाह मेरी तरह मोहब्बत करता, अल्लाह फलाने की तरह मोहब्बत करता, अल्लाह फलाने नहीं, नौज़ बिल्लाह, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई भी चीज नहीं हो सकती। जिस तरह अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं, इसी तरह अल्लाह के जो सिफात हैं उन सिफात की तरह भी कोई चीज नहीं हो सकती है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक भी मोहब्बत करता है। तो ये तो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत हुई। दूसरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यह है कि इंसान का दिल, उसकी फिक्र, उसका दिमाग, उसकी अक्ल, उसके इरादे, उसकी सोच, उसका सब कुछ, सारी की सारी चीजें उन चीजों के हासिल करने में लग जाएं। मोहब्बत रसूल का मफहूम क्या है कि इंसान का दिल, इंसान का इरादा, इंसान की फिक्र, इंसान का दिमाग, उसकी सोच उन बातों के हासिल करने में लग जाएं जो बातें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हों, जो बातें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हों कि ये हमारे नबी को पसंद है, ये अल्लाह को पसंद है, ये हमारे नबी, उनकी तलाश और जुस्तजू में लग जाएं। ये है मोहब्बत रसूल का मतलब और उसका मफहूम। वो चाहे बातें जुबानी हों या अमली हों, काम हों या ज़ाहिरी हों या बातनी हों, उनकी जुस्तजू, उनकी तलाश में इंसान लग जाए, यह है मोहब्बत रसूल का माना और उसका मफहूम। अब आपको मैं यहाँ एक और फर्क बताऊं कि मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत और एक चीज होती है इताअत, एक चीज होती है मोहब्बत, एक चीज होती है इताअत। मोहब्बत किसको कहते हैं और इताअत किसको कहते हैं? मोहब्बत ये एक अल्लाह और उसके रसूल की जो मोहब्बत है, ये इंसान के दिल के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जागुज़ी की हुई है, शरई मोहब्बत। इताअत, मोहब्बत का मतलब इताअत नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जरूरी नहीं, बल्कि इताअत एक अलग चीज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एक अलग चीज है। इताअत ये उसी मोहब्बत की शर्त है, इताअत उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की क्या है? शर्त है, उसका नतीजा है। जब आदमी अल्लाह के नबी की से मोहब्बत करेगा तो शर्त यह है कि उसकी इताअत भी करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी भी करे। वरना अगर मोहब्बत को इताअत कह लिया जाए कि जो शख्स मोहब्बत रसूल में गर्क हो वो अल्लाह के नबी का सच्चा पक्का आशिक है, तो आप क्या कहेंगे उन काफिरों के बारे में, उन दुश्मनान इस्लाम के बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी आला तालीमात, आपकी अजमत और आपके अखलाक हसना को देख करके अल्लाह के नबी की तारीफें भी कर रहे हैं? कितने मुशरिकीन मौजूद हैं, कितने कुफ्फार हैं जो अल्लाह के नबी की तारीफ कर रहे हैं। अब अबू तालिब जो हुजूर के चचा थे, वो क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते थे? अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे और इतनी मोहब्बत करते थे कि सीरत उठा के देखें कि जब कभी भी अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह की कोई भी काफिरों मुशरिकों ने ज़र्ब लगाने की कोशिश की तो अबू तालिब सामने आ गए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे भतीजे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझ बुढ़े की लाश से तुमको गुजरना पड़ेगा, तब जाके मेरे भतीजे। तो क्या ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं थी? अबू लहब भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस मोहब्बत में उसने लोडी को आजाद कर दिया था। और कितने कुफार और मुशरिकीन थे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। तो क्या उस मोहब्बत की वजह से वो जन्नती हो जाएंगे? उस मोहब्बत की वजह से ये कहा जाएगा ये मोमिन है? उस मोहब्बत की वजह से ये कहा जाएगा ये मुसलमान है? नहीं, मोहब्बत एक अलग चीज है। मोहब्बत ये जो कुफार और मुशरिकीन करते हैं या जो लोग दावे करते हैं ये एक अलग चीज है। ये क्या है? ये नबी की शख्सियत और उनकी आला तालीमात को देख करके एक मोहब्बत, ताज्जुब उन्हें लगता है कि इंसान इतना अच्छा हो सकता है, इसलिए वो मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह से वो मोमिन नहीं हो सकते, बल्कि इस मोहब्बत का तकाजा ये है, इस मोहब्बत की शर्त ये है कि वो अपने नबी की इताअत भी करें। उसका मजहर है इताअत करना। अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए फर्ज है, जरूरी है कि वो अल्लाह अपने नबी की इत्तिबा और पैरवी करे। शर्त है ये इत्तिबा करना। अगर शर्त इत्तिबा पाई गई, इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, अगर ये इत्तिबा पाई गई तो समझो वो नबी की मोहब्बत में सच्चा है। अगर ये इत्तिबा और पैरवी न पाई गई तो समझो कि वो मोहब्बत के अंदर क्या है? क्या है? कज़्ज़ाब और
झूठा है, फरेबी है। वो सच्चा आशिक, सच्चा नहीं सिर्फ जुबानी मोहब्बत है, जैसे अबू तालिब हैं और दूसरे लोग हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, उनकी किताबें, हिंदुओं की भी जो है किताबें मौजूद हैं इस सिलसिले में, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, लेकिन उसकी वजह से वो मोमिन नहीं हो सके। तो ये मोहब्बत और इताअत एक अलग चीज है, मोहब्बत एक अलग चीज है जो दिलों में होती है, इताअत ये शर्त है उस मोहब्बत की। ये नुक्ता आप हजरात अपने जहनों के अंदर रखें। अब अल्लाह और रसूल के दरमियान की जो मोहब्बत है किसी बंदे के लिए, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है? अल्लाह से भी मोहब्बत करे, रसूल से भी मोहब्बत करे। तो कोई ये कह सकता है कि जनाब अली आप तो अल्लाह से मोहब्बत, तो उस मोहब्बत में अपने रसूल को शरीक कर रहे हो। आओ मैं बताऊं, ये जो ताल्लुक है ये शिर्क का ताल्लुक नहीं है, बल्कि असल मोहब्बत जो है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ये उसी अल्लाह के मोहब्बत के ताबे, उसी अल्लाह की मोहब्बत के क्या है, ताबे है। ये अगर कोई शख्स नबी से मोहब्बत करे लेकिन अल्लाह से दुश्मनी करे तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा। बल्कि अल्लाह के रसूल, असल जो मोहब्बत करनी है वो तो अल्लाह से करनी है। रसूल से जो मोहब्बत करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने अपने नबी से, अपनी नबी की इज्जत और ताजीम करने का हमें हुक्म दिया है। तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत जो की जाती है ये अल्लाह से, असल चीज अल्लाह से मोहब्बत है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मेरे नबी की इताअत करोगे तो नबी की इताअत दर हकीकत किसकी इताअत और पैरवी होगी? अल्लाह तबारक ताला की इताअत पैरवी होगी। तो ये जो अल्लाह की वजह से हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से हम अपने नबी की इताअत और पैरवी करते हैं, तो असल इत्तिबा किसकी होती है? अल्लाह वहदहु ला शरीक की होती है। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने नबी से मोहब्बत का हुक्म दिया तो हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत भी असल में किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह वहदहु ला शरीक से मोहब्बत करनी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। तो असल मोहब्बत अल्लाह की है और नबी की मोहब्बत जो है वो उसकी लाजिम है। मलजूम, लाजिम और मलजूम, ताबे और मतबू का ये ताल्लुक है दोनों के दरमियान। दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता कि कोई कहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ रसूल से नहीं करता हूँ तो वो भी काफिर है। कोई अगर ये कहे मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से नहीं करता हूँ तो वो भी काफिर है। दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता है, बल्कि दोनों मिली हुई रहेंगी। अल्लाह से भी मोहब्बत करे और रसूल से भी मोहब्बत करे। और ये मोहब्बत से अफजल आला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और अल्लाह ताला अपने नबी से मोहब्बत करता है। तो जब अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता है तो ये लाजमी चीज है कि अल्लाह के बंदे भी अल्लाह के नबी से क्या करें? मोहब्बत करें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अना सय्यदु वलदे आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा, तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा। व अव्वलु मन यंशक्कु अनहुल क़ब्र, और सबसे पहले मैं कब्र से उठाया जाऊंगा। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं कब्र से उठूंगा और सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक तआला के दरमियान में शिफाअत की दरखास्त करूंगा और सबसे पहले अल्लाह मुझे लोगों की सिफारिश और शिफाअत का हुक्म अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह वहदहु ला शरीक की से मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह ताला अपने रसूल से मोहब्बत करता है, जो ये मकाम और ये मर्तबा अपने नबी को अता फरमाया। इस वजह से जरूरी है, ये रीजन है, ये सबब है कि हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करें? मोहब्बत करें। तीसरी चीज इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन व मुनीरा, कि ए नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा, अल्लाह के अजाब से डराने वाला बना करके भेजा, हमने आपको अपनी तरफ बुलाने वाला दाई बना करके भेजा और कि आप अल्लाह के हुक्म से लोगों की तरफ बुलाएं। इसी तरह से आपको रोशन चिराग बना करके हमने दुनिया के अंदर भेजा कि लोग उससे हिदायत हासिल करें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की सिफात बयान फरमा रहा